Good morning, all the students. I am Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about a different type of the consequences of globalizations. We were discuss about the political consequences, cultural consequences, economic consequences of globalization. Means what was the reasons of globalization and why the globalization has taken places. Here in this module, we'll discuss about the further portions of globalization and what was the impact of the globalization's positive impact as well as the negative impact, and we will take India as an example for that. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे विल डिस्कस अबाउट इंडिया एंड द ग्लोबलाइजेशन, कि व्हाट वाज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, Indian culture and Indian politics. As I told about that, all these three kinds of the things of globalizations. जैसे इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन देखिए, वी सेड अर्लियर दैट द ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑक्युपाइड अर्लियर पीरियड इन द हिस्ट्री इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फ्लो pertainings of the movements, capital, commodities, ideas, peoples go back several centuries in Indian history. Any early time we have already discussed about the people was very much fond about to migrate themselves from one place to another. As we have seen the colonial periods in the during the British time, the British came to the India and has adopted a lot of things which was earlier available in India, and also spread their own cultures too in India. As a simple example, just English is not belonging to the Indian language, but even then we have the English with us. ठीक है, तो India becomes an exporters of the primary goods and the raw materials and the consumer of the finished good. Earlier in the colonies periods में क्या था, East India Company came to the India and gradually it captured all the resources of the country, and now India become a exporter of the raw materials. Means आप कह सकते हो कि whatsoever the raw materials, it was being prepared in India and exported to the other countries, and other countries has established their factories, industries. They convert the raw materials into the finished good, and then final finished good is again sent to the India and sale in India. ठीक है, after independence becomes, because of this experience with the British, we decide to make things ourselves rather than रिसाइकलिंग्स ऑन अदर्स. ठीक है, यानी देखिए एक लंबे समय से ब्रिटिश ने क्या किया, हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया. कैसे? क्योंकि वो ब्रिटिश जितने भी थे वो इंडिया से रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते थे. दे वर नॉट हैविंग रॉ मटेरियल्स ऑन देयर फैक्ट्रीज, बट दे हैव अ फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड. यहाँ से वो रॉ कॉटन ले जाते थे और उसके कॉटन क्लोथ्स बना के इंडिया में सेल कर देते थे. तो वो अपने आप को ज़्यादा फ्लरिश करते थे, हमसे सस्ते रेट्स में रॉ मटेरियल्स को परचेज़ करते थे. ठीक है, तो दे बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट. ठीक है, तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो आई टोल्ड अबाउट दैट इंडिया ने टैरिफ बैरियर्स को मेंटेन किया था, और रीज़न बिकॉज of this specific points of globalization, because in early time the globalization's impact was negative in Indian economy. So therefore when India got independent, Indian leaders has adopted tariff barriers to stop the globalization process, means flow of anything. ठीक है, after independence, because of this experience with the British, ठीक है, we decide to make these things ourselves rather than replying to others. यानी उन्होंने स्वदेशी, जिसका एक टर्म्स था, तो स्वदेशी चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया rather than the others things. हाँ बच्चों, देखिए it has given over there that we decided to make the things ourselves rather than relying to others. यानी हमने खुद अपने आप को चीज़ों को मैनेज करना सीख लिया कि हम दूसरे से ना लेकर खुद प्रिपेयर करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे. ठीक है, we also decided not to allow the other exporters to us so that the own producers could learn to make the things. ठीक है, यानी हमने इस चीज़ को भी डिसाइड किया कि जो आउटसाइडर्स हैं या और लोग हैं वो यहाँ पर अपना सामान ना बेच पाएँ, जैसे मैंने आपको बताया था, ताकि हमारे लोग जो हैं वो इस काम को अच्छे से सीख पाएँ. While some advances were in the certain areas, critical sectors such as health, housing, primary education did not receive the attentions they deserve. ठीक है, यानी अर्लियर टाइम पे ये जो एजेंसीज़ हैं, जैसे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम्स हैं, हाउसिंग हैं, हेल्थ हैं, इन लोगों ने जितना डिज़र्विंग था उतना उनको बेसिकली
एडवांसेस नहीं मिले या एडवांटेजेस नहीं मिले, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी थी इंडिया में, ठीक है। इंडिया हैज़ अ फेयरली sluggish rates of economic growth. In 1991, the responding to the financial crisis and desired for the high rates of economic growth, ठीक है। 1991 में क्या हुआ, एक फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम राइज हुई एंड डिज़ायर्ड फॉर अ हाई रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. India embarked on programs of economic reforms that has sought increasingly to deregulate the various sector including trade and foreign investment, ठीक है। क्योंकि देखिए अब क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या किया, पूरी तरीक़ों से उस चीज़ पर रोक लगा दी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स की मोस्ट ऑफ द थिंग्स पे बैन लगा दिया, जिसकी वजह से जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो एक लिमिटेड लेवल पे रहती, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में हम एक्सचेंज कर नहीं रहे थे, हम ना अपना सामान बाहर बेच रहे थे ना बाहर का खरीद रहे थे। तो एक इकोनॉमिकल क्राइसिस की सिचुएशन हो गई और इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो स्लो हो गई। तो 1991 में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया कि भाई अब जो है इंडियन या स्वदेशी कंपनी उस लेवल पर आ चुकी हैं, दे कैन कम्पीट विद द अदर फॉरेन कंपनीज। तो 1991 में इस चीज़ को फोकस अप करते हुए इस चीज़ को फोकस किया गया कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेडिंग्स को बढ़ाएंगे ताकि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो डीरेगुलेट्स हो जाए और आसानी से बढ़ते चले जाए, ठीक है। वाइल इट इज़ टू अर्ली टू से हाउ गुड्स दिस हैज़ बीन फॉर इंडिया, यानी हम लोग अभी इस बात को पूरी तरीक़ों से कंफर्म नहीं कर सकते कि इट वॉज गुड और नॉट, मीन्स ग्लोबलाइजेशन वॉज गुड फॉर द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस और नॉट, ठीक है। The ultimate test is not high growth rate of making sure that benefits of the growth are shared, that everyone is better off. देखिए अब ज़रूरी नहीं कि बहुत हाई ग्रोथ रेट हो, अगर हाई ग्रोथ रेट है मान लीजिए और कुछ ही कंपनियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और कुछ नहीं बढ़ रही हैं, तो वो यूज़लेस है। हर एक को बेटर ऑफ मिलना चाहिए, हर एक को बेटर फैसिलिटीज़ जनरली मिलना चाहिए, ठीक है। अब नहीं मिल पाई, कुछ कंपनियां बहुत तेज़ी से इस्टेब्लिश हो गई, तब कौन सी टर्म्स आएंगे, तब टर्म्स आएंगे आपके रेजिस्टेंस का, यानी जो कंपनियां नहीं बन पाई उन्होंने क्या किया, रेजिस्टेंस किया ग्लोबलाइजेशन के लिए, क्योंकि वो इस बात पर ब्लेम कर रहे थे कि द ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट फेयर, ठीक है, यानी ग्लोबलाइजेशन जो है वो पूरी तरीक़ों से फेयर नहीं हो पा रहा है। दिस वॉज द पॉइंट्स दैट वॉज बीइंग आस्क और said by the people of India, those who are not getting a proper growth and the globalization was not beneficial for them, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, रेजिस्टेंस करना शुरू कर दिया। किस चीज़ का रेजिस्टेंस किया, ग्लोबलाइजेशन का रेजिस्टेंस किया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और एक और टॉपिक है इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू द ग्लोबलाइजेशन, यानी इंडिया में किस लेवल तक रेजिस्टेंस हुआ और कौन सी कंट्रियों ने कितना ग्लोबलाइजेशन का रेजिस्टेंस किया, ठीक है। ऑल दिस टॉपिक और दिस बोथ टॉपिक्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।